Hello, Assalamu alaikum and welcome back to Ramzan Vlogs. Today is the second vlog और अभी थोड़ी देर पहले ही हम इफ्तारी करके उठे थे. It's 11 right now as you guys can see. लेकिन इफ्तारी करने के थोड़ी देर बाद क्या होता है, आपको बहुत क्रेजी सुस्ती होती है और उसके बाद आपकी ये सिचुएशन होती है जो इन दोनों की यहाँ पे अभी हुई हुई है. आप बैठ के इफ्तारी लेफ्ट ओवर्स खा रहे होते हो. I'm not gonna lie, I was also a part of this like 5 seconds ago and I finished all of the watermelons that were in this. अब बाकी आयशा ख़त्म कर रही है. But yeah, I was a part of this और ये हमेशा होता है. इससे पहले हमने क्या खाया आयशा? पकौड़े. We also had all the pakoras. You know, these are actually all my favorite melons in one. There's garma, there's kharbuza and then there's tarboos. Garma? Where is garma? This. The round one is... This is papaya. This is not papaya, this is garma. Papaya नहीं होता है ऐसा. This is papaya. Papaya कौड़ा तरीन इतना बुरा होता है. ये मीठा वाला पपाया है अभी. मीठा पपाया कुछ भी नहीं होता. गर्मा व्हाइट कलर का होता है. प्लीज कमेंट्स में आपको. ये भी होता है. Actually ये खरबूजा ही है. The orange bit is also हटो. The orange bit was also खरबूजा, which I think you've ended all off. क्योंकि रोज़ा खोलने के फ़ौरन बाद प्यास ही लगी हुई होती है ना, आपका दिल करता है बस आप पानी पी लो, आपका फुल हो जाता है. उसके बाद आपको लगती है सही वाली भूख. है ना आयशा? है ना? है ना आपा? है ना आयशा? है ना आपी? है ना? We're here right now in the most depressing light of our house, which I don't know why our house people love. Why do they like this अस्पताल वाली बत्ती? मैं जितनी बार ऑन करती हूँ अच्छी वाली लाइट वो वापस से यही वाली ऑन कर देते हैं, तो अब I've given up on it. I just have. है ना? Yeah, I wanted to share a good thing with you every day. So today's good thing that I will be sharing with you guys is this quotation right here, which says, "Great minds discuss ideas, average minds discuss events, and small minds discuss people." This was actually a frame जो कि मेरे दादा अब्बू का था, and उसके बाद ये दोक्ताओं के रूम में भी था, मेरे रूम में भी रहा कुछ टाइम, हमारे पुराने वाले घर में भी था, भेरिया टाउन वाले घर में भी था, और अब जाकर ये यहाँ पर लगा है. But this is one quote that has stayed with me all these years. I'm not gonna say I'm not even kidding, but it's literally stayed with me and it's stuck in my head since I've ever read it. Big brains tha? Big brains. Yeah, so matlab it makes a lot of sense that, you know, big brains discuss ideas. So all of the people that we look up to, which were big brains, they've only brought up ideas in our lives. चाहे वो Elon Musk हो गया, Steve Jobs हो गया, scientists हो गए, कोई भी हो गया, Mark Zuckerberg, they were always ideas that they thought of and discussed and tried to, you know, make a difference into the world. उसके बाद जो एवरेज माइंड्स हैं दैट डिस्कस इवेंट्स, इट्स लाइक ओ यहाँ पे ये हुआ, वहाँ पे वो हुआ, यानी कि उन्हीं जो बड़े ब्रेन वाले लोग हैं उन्हीं की डिस्कवरीज और इन सब की जो भी वो इवेंट्स या चीज़ें हो रहे होंगे वो एवरेज माइंड डिस्कस करता रहता है कि हाउ डिड दे डू इट एंड ऑल ऑफ दैट. बट ठीक है, इफ़ यू आर नॉट वन ऑफ द बिग ब्रेन्स, द वर्स्ट पार्ट वुड बी to be notified as one of the small brains who basically discuss people. Because if you are one of them, if I've ever been one of them, I keep telling myself कि अगर तुम ये कर रही हो ना that you're discussing people, you are a small mind. मतलब सोचो, this quotation is that strong for me कि you cannot be that person of a small mind कि तुम लोगों के बारे में बात करो. Think of ideas, think of different things to do. That's how it is, bro. That's how deep. बात सुनो, तुम्हें कभी कोई कोटेशन बहुत ज़्यादा जोर का हिट की है? कौन सा? आग लगी बस्ती में मगर मैं अपनी मस्ती. जो हमारी जेंजी है उनको भी कोई अच्छी बात जाननी हो तो you've just heard it. आग लगी बस्ती में मगर मैं अपनी मस्ती में. Which means कि दुनिया में कुछ भी होता रहे तो stay strong and अपनी मस्ती. हाँ, तुम बना लो इसके कोई अलग अलग मीनिंग्स. Aisha, you could have said it in so many different ways, but you chose to say it in. A nice way to say. Really? Why are you so rude with me? मैं इतने दिनों बाद आई हूँ तो मुझे कोई लव नहीं कर रही, पता है? Happy is being so dramatic.
हाँ, और कल कौन मैसेजेस कर रहा था, हैप्पी आई मिस यू। एग्जैक्टली, मुझे अपने बाल छुपा रही है। एक तो ये It's इसके not called मसले। being rude. It is called being rude. She's not giving me 1% of love. That is a lie. मेरे साथ मोनोपोली रोजे में खेलो। झूठ बोल रही हो। मेरा रोजा अब खत्म हो चुका है। मेरे साथ मोनोपोली खेलो। तो बेसिकली झूठ बोल सकती है। मेरे साथ मतलब मोनोपोली कि खेलो। मंगाओ। बहुत महंगी है भाई। जब बड़ी दुकान से मंगाने लग जाओ तो 10-15 हज़ार रुपए की मोनोपोली नहीं चाहिए। 10-15 हज़ार की मोनोपोली कोई सस्ती सी ला दो, वो भी चलेगा। बूबू ऑनलाइन ऑनलाइन मोनोपोली अच्छी वाली है ही नहीं ना कहीं। मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश की और उसको रियल में खेलने में मज़ा आता है। इसे लेट्स सर्च फॉर इट फूड पैंडा पे या कहीं उस पे पैंडा मार्ट पे, क्या पता मिल जाए। मोनोपोली क्या लिखूं, अराउंड मी मोनो अभी फूड पैंडा है। फूड पैंडा पे नहीं मिली ना, पैंडा मार्ट पे नहीं मिली। अलाउ, अच्छा लेट अस सी। इट सेज डेला वाला टॉय शॉप पे मिल जाएगी विच इज़ क्लोज्ड। मास किड्स और ओडीज एजुकेशनल टॉय स्टोर विच इज़ ऑल्सो क्लोज्ड। बट है कितने की ये तो ज़रा देखें। सीक्वेंस ये फॉर किड्स है सब कुछ। वी आर नॉट गेटिंग आवर मोनोपोली। मोनोपोली इज नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल। कल लेके आते हैं मोनोपोली। मोनोपोली, आई नो इट्स मोनोपोली, जस्ट सेइंग। मोनोपोली गेम इन कराची OLX.pk फ्री क्लासिफाइड 1800 रुपये की। मतलब मैं OLX से भी लूँ और 1800 रुपये की लूँगी। लाइक लिटरली 500 वाली भी है। मोनोपोली गेम फॉर सेल। इट्स क्लियरली दैट टाइम ऑफ द नाइट जब आपको समझ में नहीं आता कि आप सो जाओ या आप सहरी का वेट कर लो। बिकॉज आई एम डेफिनेटली अ नाइट आउल। तो मैं तो उठी रहूँगी, नाइट आउल मैं तो उठी रहूँगी फॉर अ फैक्ट। लेकिन अब फिर से फ्रूट्स भी खा लिए थोड़े से और फुल भुक्कड़ फेजेस, फुल भुक्कड़। आई कैन नॉट रेजिस्ट फ्रूट्स बट आई एम ग्लैड इट्स समथिंग हेल्दी दैट आई कैन नॉट रेजिस्ट रादर देन समथिंग एक्सट्रीमली अनहेल्दी। ऑल्दो मेरे दिमाग में क्यूरोसिटी के चूरों सब फंस गए हैं आफ्टर दैट फर्स्ट व्लॉग दैट आई मेड। फंस गए। आई नीड टू हैव इट। आई माइट जस्ट हैव इट टुमारो, लेट्स सी। सो अब आई थिंक आई एम गोइंग टू किल सम टाइम until the sehri time comes and then I'll have my sehri which is also a pretty heavy sehri वैसे। It's dum keema with paratha or kulcha. Yeah, that's a heavy sehri. I'm not even used to such heavy sehris. But देखते हैं क्या सीन होता है। I'm probably gonna watch something till then or just rest. I don't know. Let us see. Healthy sehri के नाम पे अब मुझसे ये गुनाह हो चुका है। I've ordered the salsa wings from KFC which I have been craving since God knows how long, along with their fries. अभी दूसरा रोज़ा है, ठीक है, मतलब ये चलता है। ओके प्लीज़, लाइक डोंट जज मी। इसमें कुछ भी नहीं। दिस वॉज अनदर बकेट फॉर आयशा। वी बोथ डूइंग दिस, नॉट जस्ट मी। ओके बट दीज आर सो गुड, दे आर वर्थ ट्राइंग। मेरी रिकमेंडेशन है, ट्राई देम आउट। Right, so that was a super satisfying sehri, at least for me, because I have been loving and craving the KFC के salsa wings like crazy. I cannot even tell you how much. So जैसे ही ख्याल आया मैंने कहा just treat yourself girl, do it, go for it, सही है। तो सehri तो हो गई मेरी और आयशा दोनों की, but just like every Ramzan, there's another book in stock and this time I'm reading The Secret. बस इसको मैं ख़त्म करने लगी हूँ। It's a very very interesting book and I honestly love it. I will tell you guys more about it if you want to know about it. मुझे comments में बता दो if you want to know about this book because it's definitely worth buying and worth reading. And अभी तो सहरी हो गई, so this is it for right now. I'll catch you guys tomorrow. Hello, so now it's Monday. तो अब obviously Monday वाले scenes ही हो रहे हैं. I have to go right now to catch a few groceries सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी हैं generally वो, and then उसके बाद I have to go and look after the work जिसके मैंने snippets पहले blog में post किए थे, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा देखना है। and let's see, अब उस चक्कर में अब मेरी इफ्तारी जो है वो घर पे ही होती है या बाहर होती है, I have no idea, depends on the work and depends on how much time it takes me. So अभी I'm on my way. अभी जैसे ही इम्तियाज़ आई हूँ मुझे एक और चीज़ याद आई है, वो ये कि मेरे बाल आजकल इतने ज़्यादा फ्रिजी हो रहे हैं। आई नीड टू चेंज माई शैम्पू। वैसे तो आई एम सपोज टू गेट
my own shampoo, the one that I use, the Sunsilk green one. लेकिन I also think that I need to change it and get another one. मैंने अभी 2-3 दिन पहले कोई और shampoo try out किया and it made my hair like straw, even worse. तो अब देखना है कि क्या सीन है, मुझे कोई अच्छा shampoo दिख जाए. Maybe then I will get that, or else I'll just get my own Sunsilk. लेकिन अभी I'm trying to find the इम्तियाज़ की ये entrance, और I hope कि मुझे कोई चलाता चलाता गाड़ी ना टक्कर ना मार दे. I just hope so. Finally found it. The toughest part for me is to actually get out of this aisle and without really having to buy anything. इस सब के बगैर ये तो खैर बेबी क्लोथिंग आइल आ गई, इसमें मुझे कोई मसला नहीं. I do not have any attractions over here as of now. So अब बस जाने लगी हूँ. I did see a shampoo that I recently liked. वो Co Naturals का था, वो शुरू में ही दिख गया. But I don't think I'm getting that right now. अच्छा वैसे हूँ है माई डेली किडिंग. हम सबको पता है कि मैं यहाँ पे मोनोपोली देखने आई हूँ कि मुझे कहीं से मिल जाए मोनोपोली एंड देन आई कैन जस्ट बाई इट. मैं घूमते फिरते इनकी स्टेशनरी सेक्शन में भी आ चुकी हूँ, जस्ट लुकिंग फॉर द बोर्ड गेम्स. लाइक कम टू मी. ओह माय गॉड, आ गए सीक्वेंस, स्क्रैबल, मोनोपोली. असली वाली चाहिए यार. इतनी सारी बोर्ड गेम्स हैं यहाँ पे, सारी, मगर जो बेचारी एक मोनोपोली है वो स्क्रैबल प्लस मोनोपोली है. I want the real one. So I just opened this up and I mean got it opened up. तो इस साइड पे Scrabble है और इस साइड पे असली वाला Monopoly है, you know, the one with New York Avenue. This one, ये वो वाला है. I finally got myself the Scrabble and Monopoly. So I'm here in the world of shampoos literally. लेकिन I have no clue. The thing is कि मुझे खुशबू सिर्फ और सिर्फ सनसिल्क की पसंद है and I always end up buying it. क्या है ये? क्या है ये? हो रहा है रिकॉर्ड? नहीं, बंद पड़ा हुआ है. हो रहा है रिकॉर्ड? सॉरी, फिर से. नहीं क्या, कुछ भी नहीं. ये वाला ट्राई करो, चिंपोले. It's not chimpole, you Mela. It's chamomile. Chamomile, chimpole. ये मेरी लाइफ की सिचुएशंस हैं. So basically I started using this one, ये Suave वाला, and it didn't really suit my hair. मैंने कौन सा यूज़ किया था? I don't even remember. ये कोकोनट वाला कोई था. It's not here anymore. मैं घर जाके दिखाऊंगी. The conditioner was nice. The bottles are also nice. But the shampoo wasn't nice. मज़ा नहीं आया मुझे. Alright, so जो चीज़ें लेनी थी वो तो मैंने ले ली. I don't know ये एकदम से अभी क्या हुआ है, but ये भी साथ साथ हो गया. And now I'm going to work number 2 and इफ्तारी का टाइम एक्चुअली काफ़ी करीब आने लगा है. So I don't really think कि आज मेरी घर पे इफ्तारी होगी. I think आज रास्ते में ही इफ्तारी करनी पड़ जाएगी and I have quite a lot of work to deal with as well. So I think मेरा एक normal जो वो work routine है ये वही चल रहा है अभी भी, although it's Ramzan, so I have to deal with it accordingly. Now I am here at the work location and I have to start checking all the stuff that's been happening. काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं actually. अच्छा खैर मैं अंदर जाके बताती हूँ. Bye. Oh, ये locked है. Okay. So this right here is a shelf जो कि अभी तैयार हो रही है पूरी. And this is actually my office जो कि तैयार हो रहा है. But look at it. Oh my god, the deco looks good. It does. So in short, कुछ time के बाद, inshallah, this will be the background of my videos. Inshallah, after it's completed. अभी खैर time है. Oh my god, the selfie station looks so good. अच्छा खैर, so this is it for right now. मैं इससे ज़्यादा नहीं दिखा रही, लेकिन मैं अभी यहाँ पे अपना काम चेक करने आई हूँ कि कितना काम हो गया है, क्या क्या हो रहा है and all of that. And अभी literally थोड़ी देर में इफ्तारी होने लगी है. So I'm also going to rush to some place where I can have an इफ्तारी, क्योंकि फिर उसके बाद यहाँ वापस आना है and I have to get this work started again. देखा 14वीं गली का पिज्ज़ा 14. यहीं पे सारा होगा इफ्तार टाइम का सीन. थोड़ी सी जल्दी आ गई हूँ लेकिन it's 2 people.
So it was better to be here अभी से than to be here later. I'm just gonna go and sit. बाद में सारी डिटेल्स पे अपडेट करती हूँ क्या सीन हो रहा है, क्या खाने में है, क्या नहीं. ओके तो अभी यहाँ पे ऑल यू कैन ईट चल रहा है, यानी कि अनलिमिटेड सैलड, अनलिमिटेड ड्रिंक, अनलिमिटेड पिज़्ज़ाज़. दैट्स व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर. ऑल्दो आई डोंट रियली थिंक कि मैंने कभी बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा स्लाइसेस खाए हैं ऑन एन ऑल यू कैन ईट, स्पेशली जब पता होता है ना दैट यू कैन ईट ऑल दैट यू कैन ईट, तभी दिल नहीं करता. दैट्स द वर्स्ट पार्ट. आई एम हेयर विद माई फ्रेंड फहद, ठीक है, और अभी हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे अबाउट द फर्स्ट पाकिस्तानी हु वन अ ग्रैमी, ठीक है. एंड मैं तो ऐसे ही खुशी खुशी बता रही थी कि ओ माई गॉड, यू नो व्हाट, द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमन यू नो वन अ ग्रैमी, दैट्स सच अ बिग डील. ही हैड समथिंग एल्स टू से अबाउट इट, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली सिर्फ ये पता था कि ये हुआ है, किस चीज़ पे शी वन इट, क्या सीन था, आई डिडंट नो. सो बाकी आई थिंक ही शुड टेल यू गाइस. I'm very happy and excited for that woman, but I'm very disappointed, a little bit disappointed at one point that this song was originally sung by Ustad Mehdi Hasan Khan साहब. मोहब्बत करने वाले, ओके, उस्ताद मेहदी हसन खान साहब मोहब्बत करने वाले. आप गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे तो यू विल फाइंड इट आउट. तो एटलीस्ट ग्रैमी के स्टेज पे शी कुड हैव गिवन सम क्रेडिट टू द ओरिजिनल सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग, द रीमेक, एंड शी वन अ ग्रैमी for a remake song. It's a very good thing for her, but she could have given some. It's still copyright वाली चीज़ ना. हाँ, पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का कोई इस तरह से सीन नहीं है. उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के गाने जुबिन नौटियाल गाया जा रहा है और कोई रोक नहीं रहा उसको. और उस्ताद मेहदी हसन खान साहब के गाने लोग गा के ग्रैमी भी जीत रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है ना. तो इट्स वेरी रॉन्ग. मतलब उस्ताद मेहदी हसन खान साहब को कितने लोग जानते हैं? सभी जानते बेसिकली, बट लेकिन उनके फैंस के लिए बड़ा अपसेटिंग है कि उनको इस बात का क्रेडिट नहीं मिला. ये सॉन्ग एक्चुअली उनका था, तो उनको क्रेडिट मिलना चाहिए था. एंड ही इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस ऑफ मेहदी हसन. सो ऑब्वियसली जब मुझे ये सुनने को मिला, वैसा को अच्छा, आई अंडरस्टैंड व्हाई ही इज सो हर्ट अबाउट इट. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू शेयर द सेम सेंटिमेंट, वुड बी फीलिंग द सेम, बट या ये सीन है. पहले तो इट्स टाइम फॉर द अनलिमिटेड सैलड, वो जाके भरते हैं बिफोर द होल थिंग रन्स आउट. Fruit salad is तैयार. This is not a fruit salad, this is actually the main salad. और ये unlimited था वैसे, लेकिन मैं ये काफ़ी सारा बना के ले आई. मुझे याद है जब पिज़्ज़ा हट वाले डेज हुआ करते थे, तो जो मुझे एक होती है ना, कोई प्रैक्टिस कराई हुई होती है, ताई ने मुझसे ऐसी प्रैक्टिस करवाई थी ऑन हाउ टू मेक द बेस्ट मोस्ट फिलिंग सैलड. दोनों प्लेट्स इस्तेमाल करो, सारी चीज़ें डालो, मेक इट नाइस एंड सो फिलिंग. मैंने अभी सारा वही सीन किया, लेकिन आई स्टिल कांट डू इट एज वेल एज शी यूज्ड टू डू इट. बस एक नॉर्मल सा सैलड, नॉर्मल बना. Most welcome. This is my most favorite pizza from 14th Street. This is the crispy chicken pizza. Love this one, man. चल रहे random ads, ठीक है? Literally एक ad आया जिसमें एक बच्ची ने बहुत अच्छा कोई एग्जाम दिया, कुछ किया, and suddenly the mother is so emotional about it. तो उसने उसको हक कर लिया, आंखों में आंसू लेके. साथ में एकदम से क्या लिखा है? टल्लू कुकिंग ऑयल. मतलब टल्लू कुकिंग ऑयल से क्या ताल्लुक है उसके फर्स्ट आने का? ऑयल आया, टल्लू कुकिंग ऑयल का क्या पार्ट था? देखो, अगर तल्लू कुकिंग ऑयल में खाना नहीं पका होता, हाँ, तो उसको एसिडिटी होती. हाँ, एसिडिटी होती, पढ़ नहीं सकती, फेल हो जाती. इसीलिए टल्लू कुकिंग ऑयल. वाह. सो बेसिकली द थिंग इज दिस, कि जो भी आप खा रहे पी रहे हो ना, दैट इज द रीजन व्हाई यू आर व्हाट यू आर, है ना. मतलब देखो, पहले मेरी ज़िंदगी में था ईवा कुकिंग ऑयल, तब मैं कुछ भी नहीं करी थी अपनी ज़िंदगी में, नथिंग एट ऑल. फिर एकदम से मैंने ऑलिव ऑयल पे आकर शिफ्ट किया. देखो यार, कंटेंट क्रिएटर बन गई, यूट्यूबर बन गई, ऑल बिकॉज ऑफ ऑलिव ऑयल. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो रमज़ान में एक अलग सा एक वो करते हैं ना ये लोग,
खास तौर का एक टॉर्चर कि जब आप टीवी खोलोगे उसमें इतने मजे मजे के एड्स आ रहे होंगे, ये पकोड़े उड़ रहे हैं, ये नगेट्स पक रहे हैं, ये बर्गर, हाँ समोसे उड़ उड़ के आ रहे हैं. दैट इज समथिंग दैट दे ओनली शो ड्यूरिंग रमजान, सो दैट आपका दिल ललचा और आप बोले मम्मी प्लीज कौन सा कुकिंग ऑयल था, तल्लू कुकिंग ऑयल घर में ले आए, हम भी पास हो जाए और अच्छे अच्छे खाने खा लें. That is the kind of situation that happens during Ramadan. So अब इफ्तारी हो गई and साथ साथ I'm headed towards my work now. So this is it for today's vlog. I hope that you guys had fun. If you did, do not forget to give this a thumbs up and don't forget to subscribe. I'll catch you guys in my next one. Bye.